Good morning, students. Today we start the chapter "The Summer of the Beautiful White Horse," written by William Marion, from the page number 4. It is the lecture number 2. Open your page number 2. Or before I start this chapter, I want to describe the previous story of this chapter. अरम और मुराद जो कजिन्स हैं वो एक फार्मर का घोड़ा चुरा लाते हैं और उसको राइड करते हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत ही कीन डिज़ायर थे वो कि उनके पास एक घोड़ा हो और उसको घोड़े को चलाएं। लेकिन वो उस इच्छा को चोरी के द्वारा पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फैमिली से वो बिलोंग करते थे वो फैमिली जो है ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर। Some of our neighbors we belong, we let the horse run as long as it felt like running. The horse was running by its own wish. At last, my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse." My cousin said, "Get down." And at the last, Murad said to Aram to get down from the horse so that he could run that horse in a very high speed. "Well," I said, "anyway you have with a horse, I have also. For the sake of your safety," he said. "Let us hope so. Get down." "All right," I said, "but remember, you have got to let me try to ride alone." Aram insisted to ride the horse after Murad, even though he would not get down from the horse. अरम ने जिद की कि भाई अगर आप मुझे घोड़े को राइड नहीं करने दोगे तो मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा। आप पूरी फुल स्पीड में इसको राइड कर दीजिएगा और राइड करने के बाद में मैं इसको राइड करूंगा। तो मुराद ने कहा कि वो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको राइड करने देगा या राइड करने नहीं देगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir." The name of the horse was Wazir. He kicked for the hind side of the horse by his legs, and the horse ran a very high speed. The horse stood on its hind legs, snorted, and was into a fury of speed, and that was the loveliest. First of all, the horse stood up by its hind legs and started very high speed. Thing I had ever seen. My cousin Murad raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. He was crossing the points as well as the irrigation ditch, fields and orchard to by the speed of that horse. Crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. And Murad returned back after 5 minutes. And when he and horse returned back, both were dripping, both were perspired. दोनों पसीने से भीगे हुए थे. The sun was coming up. Now it was end of day. "Now it is my turn to ride," I said. My cousin Murad got up the horse. "Ride," he said. Once again Aram insisted to ride the horse. And seeing his injustice, Murad got down from the horse and he gave it, or we can say he handed it to Aram. उसने घोड़ा जो था वो अरम को पकड़ा दिया, बोले अब ऐसा करिए आप चला सकते हो इसको। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the rest away full fear imaginable. The horse did not move. As well as Aram tried his best to start or to run the horse did not budge. The horse अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला. Kick into his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about."
Murad instructed Aram to be hurry up to ride the horse because they had to tie the horse in a proper place to hide it from the sight of the pupil. लोगों की नज़रों से बचाने के लिए उन्हें घोड़े को बांधना भी था, तो इसलिए उन्होंने कहा जल्दी करिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम लेट हो जाएंगे और जल्दी चलाइएगा और इसकी मसल्स पर आप किक करिएगा तब ये दौड़ेगा. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and started. Then it began to run. As well as Aram kicked the horse. At the same moment, the horse ran very fastly. I did not know what to do. Instead of running across the field of the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dacron Helivan, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. When Aram was riding the horse, it was completely imaginable. पूरा out of manage हो गया था ये, और he let down Aram from its back and ran very fastly. उसने अरम को पीठ से गिरा दिया और बहुत तेजी से दौड़ता हुआ चला गया. My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I will go this. If you come upon him, be kindly, I will be near. Murad instructed Aram that he was not worried about his bounds. He said that he is so much worried about the horse, and he also instructed if he comes near the horse, then very lovingly he would call the horse to stop him. मुराद ने कहा मुझे तुम्हारे घावों की, तो मुझे तुम्हारे चोट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे घोड़े की परवाह है. और जैसे मैं इस रोड को जाता हूँ, आप इस रोड को जाइएगा, और जैसे ही आप अगर आप घोड़े के पास पहुँचे तो क्या करना है, आपको उस घोड़े को बहुत ही प्यार से ट्रीट करना है जिससे वो पकड़ में आ सके. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. I took him half an hour to find the horse and bring him back. उन दोनों लोगों को नियर अबाउट हाफ एन आवर लगा उस घोड़े को वापस लाने में या पकड़ने में. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. मैंने कहा तुम क्या करोगे? पूरा तो दिन निकल गया है, इस घोड़े को कैसे छिपाओगे आप? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो मुराद ने कहा कि हमको इस घोड़े के लिए कल सुबह तक कहीं छिपा कर रखना है. He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back. Not for a while at any rate. At any rate एक तरीके का एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर. तो अरम अच्छी तरीके से जानता था कि मुराद उस घोड़े को बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं छिपा देगा और अगली सुबह उसको निकालेगा, क्योंकि वो एक तरीके से जुनूनी लड़का था. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned me that he had been taking these early mornings ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अचानक अरम ने मुराद से ही पूछा कि आप इस घोड़े को चुरा के कब लाए थे, क्योंकि उसके अचानक दिमाग में ये आया कि ये कई दिनों से इस घोड़े को चला रहा है, वरना इसको एक प्रॉपर प्लेस कैसे पता होता कि मुझे इसी को घोड़े को यहीं पर छिपाना है. और मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी घोड़ा चलाने के लिए, जिसकी वजह से मुराद ने आज सुबह मुझे बोला कि चलो तुम अगर घोड़ा चलाना चाहते हो तो चला सकते हो. तो मुराद ने कहा कि आज ही सुबह हमको ये घोड़ा मिला है, और अरम को भी वार्न करा कि अगर हम पकड़े जाएं तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि हमें ये घोड़ा सिर्फ आज ही मिला है, हमें तो आज मिला, आज ही पकड़ दिया है और आज ही हम इसको क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? 7 points are here. Not until this morning, he said.
मैंने आपको पहले भी बताया कि मुराद ने कहा कि अगर पकड़ में आ जाए तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आज की सुबह ही हमने ये घोड़ा मिला है और आज ही हमने ऐसे चलाना शुरू किया है। Are you telling the truth? I said. Oh, of course, he said. But if we were found out, that is what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. मुराद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम झूठे साबित हो या मैं झूठा साबित हूँ। पकड़े जाने पर यही बोलना है कि हमने इसकी राइडिंग जो है आज की सुबह से ही शुरू की है। All right, I said. He walked the horse quietly to a barn. Barn का मतलब होता है खलिहान। खलिहान क्या, देखिए ओल्डर डेज में क्या होता था कि जितना ये अनाज वगैरह था एक प्रॉपर प्लेस पे निकलता था, खेतों में नहीं निकलता था, क्योंकि वो टाइम मशीनरी एरा नहीं था, मशीनरी का युग नहीं था। तो ये भी बार्न था, ये डेजर्टेड वाइनयार्ड। डेजर्टेड का मतलब है यहाँ पर अब ये अनाज वगैरह नहीं निकाला जाता था, तो वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची घास उगाई थी। Which at one time had been the pride of a farmer named फतवा जैन, और ये फतवा जैन का वार्म हुआ करता था, खलियान हुआ करता था। There were some oats and dry alfalfa in the barn. Alfalfa एक काइंड ऑफ ग्रास होती है, एक तरीके की घास होती है, लहसुनिया घास एक तरीके से बोलते हैं, बहुत ऊंची ऊंची घास होती है जिसमें एक इंसान कवर अप हो सकता है। We began walking home, और हमने घर चलना शुरू कर दिया। It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. When both they were in the way, Murad said to him that it is not easy to ride a horse. First of all, we should treat the horse in a very loving way, and he had a way. एक वो तरीका जानता है to manage the animals, और वो तरीका कौन सा था? That was the way of love. देखिए, आपके घर में भी कोई जानवर है और आप उसको रोज रोटी देते हैं तो वो आपको पहचान जाएगा और आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही चीज़ जो थी वो मुराद के अंदर थी, वो जानवरों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था। Well, I said, I wish I knew how to reach the understanding like that with a horse. और अरम ने भी कहा कि वो भी समझ जाएगा कुछ समय में कि घोड़ों के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. तो मुराद ने कहा जब आप 13-14 साल के हो जाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि ये घोड़ों को, जानवरों को कैसे बस में किया जाता है। I went home and ate a hearty breakfast. अब देखिए उस दिन बहुत खुश था, इतना खुश था कि हार्टी ब्रेकफास्ट खाया, मतलब जितना प्रॉपर खाता था उससे ज़्यादा खाया उस दिन उसने। That afternoon my uncle Khosrow came to our house. ये अंकल खुसरो वही हैं जो एक तरीके के कैंट्रिक हैं, जो सनकी हैं, जो हर बात में ये कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म, ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये है वो अंकल खुसरो। फॉर कॉफी एंड सिगरेट ही सेड इज द पार्लर। पार्लर का मतलब होता है सिटिंग रूम, जहाँ पर मेहमान बैठते हैं। शिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो अपने पुराने दिनों को यादों को ताज़ा कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Vairo. देखिए ये जॉन वायरो वही किसान है जिसका घोड़ा मुराद खोल के ले आया है। In Azarian, ये अजारिया का था, असारिया का था। Who out of loneliness, और अकेला था, had learned to speak Armenian, और अकेला रहता था इसलिए उसने आर्मेनियन लैंग्वेज को सीख लिया था। और आपको मैंने पहले भी बताया कि आराम और मुराद जो थे वो आर्मेनिया से बिलोंग करते थे। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last sighing sadly, और उसने बहुत गहरे मन से दुख से आह भरी बोला, he said, my white horse which was stolen last month is still gone, I cannot understand. और उस किसान ने कहा कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था पिछले महीना किसी ने चुरा लिया था, फिर से चुरा लिया, और मेरी समझ में नहीं आता कि ये चोर कौन है जो इस मेरे घोड़े को चुरा कर ले जाता है। माई अंकल खुसरो
became very irritated. देखिए अंकल खुसरो को तो अपनी टांग लगाने का मतलब था, वो ना सिचुएशन को समझते थे ना किसी की परेशानी समझते थे, वो एकदम से चिड़चिड़े हो गए। उसकी अंकल खुसरो जो थे पर एकदम से गुस्से में आ गए जब जॉन फायरो ने ये कहा कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया। इट इज़ नो हार्म, बोले कोई नुकसान नहीं है, घोड़ा चोरी हो गया। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, यार ये घोड़े को रो रहा है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, और हमारे तो घर बर्बाद हो गए, हमारे तो लोगों ने घर छीन लिए। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, और तू एक घोड़े के लिए रो रहा है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन वायरो सेड, बट विदाउट वाट ऑफ माई सरे, सरे का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। तो जॉन पायरो ने कहा कि देखो भैया तुम तो शहर के किनारे रहते हो, मैं गांव में रहता हूँ, और बिना घोड़ा के मेरी घोड़ा गाड़ी जो है बेकार हो गई, वो ऐसी ही पड़ी हुई है। What good is a सरे विदाउट ए हॉर्स, और एक हॉर्स के बिना मेरी जो तांगा है, मेरा जो घोड़ा गाड़ी है, वो तो बेकार हो गया। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, तो अंकल खुसरो एकदम से चीखने लगे, बोले बिल्कुल ध्यान मत दो, गाड़ी बर्बाद हो जाए, घोड़ा चला जाए, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन वारो सेड, जॉन वारो बोला कि अरे भैया मैं 10 मील पैदल चल के आया हूँ। यू हैव लैग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, अब तो मेरे अंकल खुसरो ने चीखे, बोले तुम्हारे पास पैर हैं, अरे घोड़ा नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं चल रही, तो पैर है, पैर से तो चल के आओ, ऊपर वाले ने पैर तो दिए हैं, उनसे पूछो जिनके पैर ही नहीं है। तो माई लेफ्ट लेग्स पेन्स मी, द फार्मर सेड, तो वो किसान बोला भैया मेरा ये जो लेफ्ट लेग है इसमें तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाता हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता हूँ। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, तो माई अंकल जो खुसरो थे एकदम से चीखने लगे, अरे पैर दर्द करता है तो क्या हुआ, बिल्कुल भी ध्यान मत दो, दर्द का एहसास ही नहीं होगा। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, बोले तुम्हें पता भी है $60 कीमत है मेरे घोड़े की। आई स्पाइट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, तभी अंकल खुसरो बहुत गुस्सा हो गए, बोले थूकता हूँ, मैं थूकता हूँ तेरे डॉलर्स पर, तुम लोग पैसों को वैल्यू देते हो, हम लोग पैसों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट का मतलब होता है बाउट आउट, निकल गए। ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और जो दरवाजा था उसको बहुत तेजी से उन्होंने बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने व्याख्या की, मेरी माँ ने बताया कि आप बुरा मत मानिए, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ये है कि हम लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों ने हमारे घर छीन लिए। ओटोमान एम्पायर थी, वहाँ का जो राजा था उसने एक मजहबी लड़ाई थी जिसकी वजह से उनके उस ओटोमान एम्पायर के क्रूअल किंग ने इनके घरों को इनको एक तरीके से रिफ्यूजी बना दिया था। He has a gentle heart, she said. It is a simple that he is homesick and such a large man. बोले दिल के बहुत अच्छे हैं, घर की याद आती है इसलिए ये परेशान रहते हैं, वरना बहुत अच्छे इंसान है ये। The farmer went away and I ran over to my cousin मुराद house. और जो किसान था वो चला गया, ये सुनकर मैं मुराद की तरफ दौड़ा। He was sitting under a peach tree, वो एक नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the hard wing of a young robin. Robin नीलकंठ चिड़िया होती है, वो टूटे हुए पंख वाली एक चिड़िया थी, उसके पंखों को वो रिपेयर कर रहा था। Which could not fly, और ये चिड़िया चोट की वजह से उड़ नहीं सकती थी। He was talking to the bird, और वो बड़े प्यार से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस चिड़िया से बात कर रहा है। What is it? He said. बोले क्या है क्या है? अब ये जो हरम था वो इसलिए गुस्सा था कि पिछले महीना भी चुरा के लाया था, तो पिछले महीना तुमने तो मुझे बताया नहीं, आज बता रहा है। द फार्मर जॉन वायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, एक महीने से तुम इसे रखे हो घोड़े को अपने पास। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और हरम ने जिद पकड़ ली, बोले तुम इस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक कि मैं राइड करना नहीं सीख जाता। I will take you a year. It will take you a year to learn to ride. My cousin मुराद साहब, मुराद बोला अरे यार तुझको तो 1 साल लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 साल तक इस घोड़े को वापस ही नहीं करूँगा। We could keep the horse a year, I said. तो मैंने कहा ठीक है, हम 1 साल तक इस घोड़े को अपने पास रखते हैं। My cousin मुराद left at his feet, और मेरे मुराद जो मेरा ब्रदर मुराद था वो एकदम से परेशान हो गया, पैरों पे खड़ा हो गया, बोले क्या बात कर रहा है तू, 1 साल तक रखेगा इस घोड़े को अपने पास।
What he wrote, are you inviting a member of the Groglanian family to stay? देखिए मुराद अच्छी तरीके से जानता था कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी फैमिली पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, जिसकी वजह से वो चलाने के लिए लाया था। ऐसा नहीं, वो उसका इंटेंशन ये नहीं था कि बहुत लंबे समय तक इसको रखेगा, बस वो अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसके बाद में उस घोड़े को वापस कर देगा। The horse must go back to its true owner. When I said, तो मैंने कहा कब वापस करेगा भाई तो इस घोड़े को? In 6 months at the latest, he said, बोले 6 महीने में लगभग। He threw the bird into the air, उसने उस चिड़िया को आसमान में उड़ाया। The bird tried hard, almost fell twice, 2 बार चिड़िया गिरी, but at last flew away high and straight, और वो चिड़िया ऊंची 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 और ऊंची आसमान में उड़ती हुई चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode to. And every morning the horse, when it was my turn to ride along, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. For 2 weeks, means is that 14 days continuously, Aram and Murad rode the horse every morning. But every morning when Aram tried his best to ride the horse, every time it was the horse who made him fall down from its back and ran away. हर सप्ताह और वी कैन से 14 दिनों तक लगातार मुराद घोड़े को बहुत अच्छी तरीके से राइड करता था, और जब अरम की बारी आती थी तो ये अरम को गिरा देता था और भाग जाता था। One morning on the way to Fatwajan deserted vineyard, we ran into the farmer John Viro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way, the farmer. Good morning, John Viro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer stirred the horse eagerly. One day when both were sitting on the back of the horse, on the way they found out the real owner, that's name was John Viro. Seeing John Viro, Murad did not ran away with the horse, but went straight towards him. If he went away or he ran away from there, he had been suspected. घोड़े का जो मालिक था वो रास्ते में मिला और उसको देखकर मुराद नहीं भागा, एंड ही सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो भाग जाता तो वो रेड इन हैंड हो जाता, सस्पेक्टेड हो जाता। गुड मॉर्निंग son of my friends, he said, what is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. देखिए इससे पहले मुराद ने उसे वजीरे बोला था, लेकिन जब जॉन वायरो उसको मिलता है तो बोलता है मेरा दिल, माई हार्ट है इस घोड़े का नाम, और घोड़ा माई हार्ट नेम से रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। A lovely name, John Viro said. For a lovely horse, I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? तो जॉन वायरो ने कहा कि मैं इसके दांतों को गिन सकता हूँ, बिल्कुल मुझे तो ये वही घोड़ा लग रहा है जो मेरे घर से चोरी हो गया है कई सप्ताह पहले। Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth and the horse. Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse. If I did not know your parent, the fame of your family, for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse, a suspicious goat. Believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. Seeing the horse, counted its teeth, John Viro said that my mind says that this horse belongs to me, but my heart explains me that both belongs to a very well-known family for honesty, so they could never be a thief. So John Viro said them good morning and let them go, और उन्हें जाने दिया गुड मॉर्निंग बोल के, क्योंकि जॉन वायरो ने कहा कि आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो ईमानदारी के लिए जानी जाती है। मैं मान सकता हूँ ये घोड़ा मेरा है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ ये घोड़ा जुड़वा हो सकता है।
लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है ये मेरा घोड़ा है, लेकिन दिल ये कहता है कि आप चोर नहीं हो सकते। ये देखकर दोनों लोग एकदम सकते में आ जाते हैं और देखिए क्या सोचते हैं। गुड डे जॉन बारो, माय कजिन मुराद सेड, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. और अगली सुबह तक इस घोड़े को आरम और मुराद जॉन बारो के घर पर क्या कराए, बांध आए। The dogs, I whispered my cousin Murad, I thought they would bark. मैंने कुत्तों को देखकर कहा कि मुराद से कि देखो कुत्ते हमें काट लेंगे, लेकिन मुराद ने कहा, माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। जाने से पहले ये लास्ट फेयरवेल थी मुराद की, उसने घोड़े को गले लगाया, अपनी नाक की टिप को घोड़े की नाक की टिप पर टच किया और वहाँ से चला गया। These are the last lines of the chapter. That afternoon John Byro came to our house in his surrey. अब देखिए वही जॉन बायरो घोड़ा गाड़ी के साथ आया, उस घोड़े के साथ आया, and showed me my mother the horse that had been stolen and returned. देखो बोले कमाल हो गया यार, घोड़ा मेरा चुरा लिया और वापस चोर भी कर गए यार, बड़े अजीब चोर हैं। I don't know what to think, he said, the horse is stronger than ever. और घोड़ा पहले कमजोर था, अब तो और ताकतवर हो गया है, बेटर टेम्पर्ड टू, मेरा कहना भी मानता है। I thank God my uncle खोसरो। अब देखिए अंकल खोसरो फिर थे यहाँ पर, और ये बात सुनकर वो फिर से एकदम हाइपर हो गए, बोले कि क्वाइट मैन क्वाइट, मुंह बंद कर ले इंसान, मुंह बंद कर ले, योर हाउस हैज बीन रिटर्न, पे नो टेंशन टू इट। अब तू काहे को कूद रहा है भाई, जब तेरा घोड़ा मिल गया तो क्यों चीख रहा, घोड़ा मिल गया, ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस। थैंक यू वेरी मच।